Now I request Sri Tarun Kumar, in charge, Alimco. Now I request. I also invite Raj sir. Also, Good morning and very warm welcome to all. Honorable Chief Guest Sri B.L. Verma, Minister of State, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Honorable Member of Parliament Sri Vishnu Padan Rai, Sri Arjun Sharma IAS Deputy Commissioner, Andaman District. Sri L. Kumar, IAS, Secretary, Department of Social Welfare, Andaman Nicobar Administration. Sri Tarun Kumar, in charge, Alimco, RNC, Kolkata, SK Red Sir, and distinguished guests, esteemed representatives, Dr. Abhijit Sir, and dear colleagues, and dear friends, and dear my parents and beneficiaries. It is with great honor and immense joy that I extend a heartfelt welcome to each of you on this special occasion, the inauguration of Pradhan Mantri Divyasha Kendra, PMDK. A special and distinguished welcome to our Honorable Chief Guest, Sri B.L. Verma, whose leadership and dedication to social justice and empowerment continue to uplift countless lives. Sir, your presence today reaffirms the Government of India's commitment to inclusivity, and we are privileged to have you among us. Warmest greetings to Sri Vishnu Padan Rai, Honorable Member of Parliament. Sir, your dedication to the welfare and rights of persons with disability in the islands has been truly impactful. Welcome you, sir. I take this moment to warmly welcome Sri Arjun Sharma sir, IAS Deputy Commissioner of Andaman District, whose proactive leadership has been instrumental in bringing this vision to life. Welcome you, sir. And a warm welcome Sri L. Kumar sir, IAS Secretary, Department of Social Welfare. Your dedication and commitment to social welfare have been invaluable in making this initiative a success. We deeply appreciate your support and leadership in ensuring accessible service for those in need. Welcome you, sir. A warm welcome Sri Tarun Kumar, in charge, Alimco, RNC Kolkata, and SK Red Sir, and his team for the dedicated efforts in providing quality assistive devices. Your contributions are invaluable in empowering Divyangs and elderly citizens. Welcome you, sir, and welcome you all team members of Alimco. I welcome Dr. Abhijit Roy, Deputy Director, DHS, and warm welcome to you, sir, to this program. I warm welcome dear Ganesh Samdar, Joint Secretary, National Program of Prevention and Control of Deaf Class. I would also like to extend a heartfelt welcome to all our distinguished guests, representatives of various organizations, media, personal beneficiaries, families, and community members. You are the heart and soul of this event. Your presence today strengthens our shared vision of accessibility and dignity for all. Let us this inauguration mark not only the beginning of a new center, but a promise of hope, empowerment and progress for the Divyangs and elderly citizens of Andaman and Nicobar Islands. Thank you. Jai Hind.
आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी श्री वीरेंद्र वर्मा जी, जो स्पेशल दिल्ली से चलकर आज यहाँ अंडमान निकोबार में आए हैं और इस प्रधानमंत्री जिज्ञासा केंद्र का अपने हाथों से इन्होंने उद्घाटन किया। सर को बैकग्राउंड ऑफ अप्रोच टू वीर वर्मा जी, इन्होंने अपना कीमती समय देके आज यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही मैं श्री विष्णु राय जी का भी स्वागत करना चाहूँगा कि आज वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री एल कुमार, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, आपका भी स्वागत है सर। अर्जुन शर्मा जी, डिप्टी कमिश्नर अंडमान निकोबार, आपका स्वागत है। मैडम सुनीता मौल जी, थैंक यू फॉर योर टाइम सपोर्ट। आपने जिस तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में ये कार्यक्रम को संपन्न कराया, इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अभिजीत रे जी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, श्री दिलीप जानकी मॉल डायरेक्टर जी। मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जिज्ञासा केंद्र जो अभी हम खोल रहे हैं, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनका सपना था कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे हम लोग अपने केंद्रों को खोलें जहाँ पे जो हमारे दिव्यांगजन भाई हैं, जिनको अपने हाथों से, पैरों से, कानों से, आँखों से अलग अलग तरीके की जो डिसेबिलिटीज होती हैं, उनको वहीं पे उनको एक सेवा दी जाए जहाँ पे वो अपना आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपने असिस्टिव डिवाइसेस हाथों हाथ उनको मिले। तो ऐसे करके आज हम 70 से ज़्यादा दिव्यांगता केंद्र पूरे भारतवर्ष में पहुँच चुके हैं और आने वाले वर्ष टाइम में हमको एक पीएमओ ऑफिस से टारगेट भी मिला है कि पूरे भारतवर्ष में 500 जिज्ञासा केंद्र खोलने हैं। तो आज इसमें ये अंडमान निकोबार में भी आज ये खुल गया है। तो यहाँ की जो जनता है, जो असिस्टिव डिवाइस इनको फ्री में मिलेंगे। दिव्यांगजन और नॉट केवल दिव्यांगजन, जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके कुछ 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप लोगों के पास होना चाहिए, जैसे यूडीआईडी कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड भी आप इसकी फोटोकॉपी लेके आइएगा और यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आपका रजिस्ट्रेशन कराइए। हाथों हाथ आपका असेसमेंट होगा और जो जिस उपकरण की भी आपको जो ज़रूरत होगी वो आपको दिया जाएगा। सिमिलरली एक सीनियर सिटीजन जो हैं, जो वृद्धजन हैं, उनके लिए भी भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है कि राष्ट्रीय वैश्विक योजना। उसमें भी क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी भी कई उम्र के साथ साथ कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडी में, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, जैसे व्हील चेयर हो गई है, हेयरिंग एड्स है, क्रचेस हैं। तो ये सारी चीज़ें सीनियर सिटीजन को भी फ्री ऑफ कॉस्ट अलिम्पो के प्रधानमंत्री जिज्ञासा केंद्र से दिला जाएगी। ताकि आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तरुण सर। और जो इन्होंने जानकारी दी आप लोगों को, बहुत सी जानकारी इन्होंने बताई कि कैसे आप भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और आज मैं जिलों के माननीय सांसद श्री विष्णुपद रे जी से आग्रह करूंगी कि वे दो शब्द सभा को संबोधित करें। नमस्कार। हमारे बीच में भारत सरकार के माननीय मंत्री जी बीएल वर्मा जी, राज्य मंत्री उपभोक्ता, फूड एंड सप्लाई और इस संस्था, आपका आगमन में बहुत साल बाद दिव्यांग लोगों को कुछ मदद का अधिकार मिलेगा तो सामान दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 5 साल से कुछ हुआ भी नहीं हुआ। पिछले 5 साल एमपी का नाम पर पास दिया गया था, पास अभी तक नहीं आया। दुखद घटना है। मैं जो आके पूछताछ कर रहा था तो सुनने में आपसे सुना मैंने, जो स्टूडेंट्स है 14 से 18 साल तक उसको मिलेगा ट्राइसाइकिल। बहुत स्टूडेंट्स है जम्मू में, कैम्बेल से बिजलीपुर तक, आपका माध्यम से, अंडमान वर्जन का माध्यम से ये सारे कलेक्टर्स को ट्राइसाइकिल दिया जाए।
इस पर विशेष ध्यान दिए अनुरोध है। खास करके और एक अनुरोध है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाईएस्ट कॉस्ट इन इंडिया। आपका आलू दिल्ली में 20 रुपया, आलू 70 रुपये। आपका पत्ता कभी फूलगोभी दिल्ली में मामूली रुपये मेरा 50 गुना ज्यादा है, ये हाई कॉस्ट है। कितना पेंशन मिलता है ओल्ड एज पे हैंडीकैप को? ओनली 2,500 रुपये, ओनली 2,500 रुपये। गवर्नमेंट वालों को टीए डीए सब मिलेगा, इसको बढ़ोतरी किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्राइटेरिया ऑफ एंटरटेनमेंट, इसके अमाउंट आगे बढ़ा है। अब ये भी से बात कर रहा था, इसको बढ़ाया गया। तो लोग डबल ऑफ एनवायरमेंट को प्रधानमंत्री का मदद उन लोग को मिले। द्वीप समूह में हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट्स है, दुखद घटना बोलना जरूरी है। तो सामने मैं आइडिया के मेंबर था वाजपेयी जी के पीरियड समायकाल में, मोदी का समायकाल में, तो उसमें फैसला हुआ था आइडिया मीटिंग, अंडमान मेडिकल कॉलेज खोलेगा पीपीपी मूवी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मूवी। माता अमृत आया था, सरकार नहीं की। सरकार चलाता है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट नहीं है नाम के लिए। तो 2 दिन पहले एक इंजीनियर प्रिंसिपल था, चोट लगा, स्पेशलिस्ट है नहीं, मृत्यु हो गई। व्यवस्था काम नहीं, इसको काइंडली आप बनाए, अनुरोध करूंगा, मैं आपको पत्र भेजूंगा कि हॉस्पिटल्स को एम्स लेने चाहते, प्रॉब्लम देने भी नहीं मांगता, पेशेंट ऑफिसर लोग ट्रीटमेंट यहाँ नहीं करते, पूरा ट्रीटमेंट होगा दिल्ली जाएगा, हम सब लोग रोज बढ़ते रहेंगे। इसके लिए दोबारा खोजने के बाद एनएम्स कॉलेज को पीपीपी मोड में अमृता में अपोलो को दिया गया है। एम्स आएगा, बात मैंने किया, ये बहुत दुखद घटना है, इसलिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये अधिकार लोग को मिले, मुझे न्याय मिले। स्पीच थेरेपी या नहीं है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या नहीं है। 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह खोला जाए। निकोबार ग्रुप आइलैंड्स में मिडिल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है, सेंटर को खोला जाए, आगे बढ़ाया जाए। एमपी नेट से एक बांस दिया गया था हमारा दिव्यांग भाइयों को के लिए, 22 में दिया, 2500 आज तक बांस नहीं खोला। सोचिए, भारत सरकार का एमपी नेट फंड इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कितना इनका अंदर नेग्लिजेंसी है, तो घटना है। और आज दूर से प्रधानमंत्री का एक आदेश में अपलोड के अंडमान चल रहा है। मैं आपको बोलना जरूरी है कि आपको आप गांव से, जमीन से, सरकार से आए, उत्तर प्रदेश से जीत के आना तो मामूली व्यक्ति नहीं होता है। खास करके मैं अनुरोध करूंगा, बाकी मैं 80% लोग भूख है, ये रेट्स भूखों नहीं है, ठीक है, भूख नहीं है, आज शुरुआत हुआ। अनुरोध करूंगा आपका माध्यम से एडमिशन को काइंडली ध्यान दे। ये बात यहाँ बोलना, अगला पार्लियामेंट चर्चा भी होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैं आपको सुनना जरूरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लोग राजा कालापानी में आया था, उनका जमीन में वो अपना दादा का जमीन बच्चों को कर नहीं है, पूरा खुद मांगा है, कमीशन नहीं होगा। ये प्रोटेक्ट सिस्टम अंडमान निकोबार बनाया है, इससे नहीं था, कुछ लोगों ने बनाया, परिणाम हम लोग सब भोग रहे हैं। इसको भी आपको जानकारी दिया है, आपको दूंगा कि न्याय मिले, अधिकार मिले, सब कुछ मिले। और ऐसा कैंप एक बार सब जगह में असर देकर 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह खोली,
फिर उनके फैसिलिटीज मिले, स्पीच थ्योरी के बारे में तो कुछ होगा, यह बहुत कम लोग आते हैं, संभव ही नहीं है। इसलिए अनुरोध करते हूँ, मैं आपके पास इस बात को मैं कहना जरूरी था। इस बार भाषण में पालन में कहूंगा, एक साल हो गया, एक काम मैं नहीं कर सका हूं। जो प्रश्नोत्तर माननीय मोदी जी दिया था, अमित शाह जी दिया था, इंडिपेंडेंट अंडमान इंडिपेंडेंट नहीं कर सका। एक साल 5 रुपये से भारत में देखा, खासकर अच्छा हर बार का शांति ऐसी बनता है कोई क्या होगा, ये कथा है, इसको मैं आपको यहाँ बोलना आज सार्थक नहीं पर जरूरी है, उनके पास काम निकालने जा। मैं आज खुशी का बात है, इस बात को जोड़ना था, मैं जोड़ा। और आगे अनुरोध करूंगा प्रशासन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ध्यान दे। 8 साल हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना घर से बाहर घूम के देखा हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पंचायत में नहीं, म्यूनिसिपल में नहीं गया, गांव में नहीं गया, बस्ती में तक नहीं गया, 8 साल नहीं गए, नहीं बिल्कुल 8 साल गया नहीं। पब्लिक एविडेंस करो, खुदा का हालत क्या है, सब हालत को बुझा के रखा है। इस बात को आप सबको इसलिए कहना चाहता हूँ, दीप समूह में ऐसे नहीं है, एक लोन एमपी है, इसीलिए मैं आपकी बात भोजपुर से बोलना चाहता हूँ कि दीप में अटेंशन कम से कम आए। आज ये बात इसलिए बोलना चाहता था मैं कि आपको आपका माध्यम सरकार बात पहुंचे। बाकी आज क्या बढ़िया शुभ दिन है, शुभ दिन में एक पत्र में दूंगा, खास करके मैंने साहब ने कहा, खास करके उस पर अनुरोध करूंगा आप कुछ कार्रवाई करें। और आज खुशी का दिन है, माननीय मंत्री जी का आह्वान पर, मंत्री के दौरा पर क्या क्या चीज आपको मिलेगा, साइकिल हो, स्टिक्स हो, हियरिंग एड्स हो, जो आपका जिंदगी का हिस्सा है, वो अभी थोड़ी देर बाद मंत्री के हाथ से आपको कुछ दिखाया जाएगा। इसलिए अगला हमारा भाषण का मंत्री वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से आग्रह है कि वे कुछ चर्चा करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस पोर्ट ब्लेयर, जिसको हम विजयपुरम कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलामी के प्रतीकों को हटाने का क्रम रखा है। उसी में से एक ऐसे विजयपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का आज यहाँ शुभारंभ हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर हमारे यहाँ के बहुत लोकप्रिय सांसद, जो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह के सांसद हैं, आदरणीय श्री बिटूपद राय जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान श्री अनुज राम शर्मा जी, श्री सेक्रेटरी समाज कल्याण श्री एल कुमार जी, हमारे डायरेक्टर सीआरसी पोर्ट ब्लेयर श्रीमती सुनीता मौल जी, डॉक्टर अभिजीत राय जी, जो हमारे उपनिदेशक हैं, श्री एस के रथ एलमुको, श्री तरुण कुमार जी एलमुको, और मीडिया के सभी पत्रकार छायाकार मित्रों और अन्य इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिक और मेरे बहनों भाइयों, आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मानिय देवियों सज्जनों, आज का ये अवसर इस विजय पर्व के लिए
जिसे हम पोर्ट ब्लेयर भी कह सकते हैं, मुझे लगता है कि यादगार दिन होगा। यादगार दिन इसलिए कि आज प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र जो दिव्यांगजनों के लिए खोला जा रहा है, इसमें मैं कह सकता हूं मेरा जो गृह जनपद है, मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं कि मेरी जो लोकसभा है अभी उसमें प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का शुभारंभ नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उससे भी पहले आपके इस द्वीप पे, जिसे हम पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, विजयपुरम कहते हैं, यहाँ पर ये दिव्यांशा केंद्र खोलने का काम हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश भर में अब तक जहां 70 दिव्यांशा केंद्र खुले हैं, उसमें से 71वां आपका पोर्ट ब्लेयर में ये दिव्यांशा केंद्र खुलने जा रहा है, खुला है। तब मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, तो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए जो काम हुआ है, ऐसा काम, इतना काम कभी ऐसा हुआ नहीं। सामान्य देखो सदनों, 2016 से पहले ये सब तो दिव्यांगजन नहीं था, इसको लोग विकलांग कहते थे। और जो भी दिव्यांगता किसी की होती है, वो अपनी दिव्यांगता से चाहे कोई परेशान होता था, वह विकलांग सबसे भी उसके लिए मन में कष्ट होता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन 2016 में कहा ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग वो होते हैं जिनके दिव्य अंग होते हैं, और दिव्य अंगों में दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में ही दिव्यांगजनों के लिए और कैसे सशक्त किया जा सके, इसके लिए आरक्षण में भी बदलाव किया। नौकरियों में आरक्षण 3% होता था दिव्यांगजनों के लिए, तो 3% से बढ़ाकर के 4% करने का काम किया। उच्च शिक्षा में जो आरक्षण 3% होता था, उसके लिए बढ़ाकर के 5% करने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं उसी दिशा में कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहते हैं मेरे देश के 140 करोड़ लोग, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिक या देशवासी हमेशा उसको परिवार माना है। और माननीय मोदी जी कहते हैं कि मेरे देश के 140 करोड़ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजन जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो मेरा देश 140 करोड़ कदम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो सम्मानित साथियों, आज एक करोड़ों की तादाद में हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं, इनके लिए कैसे सशक्त किया जाए, इसके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा तरह तरह से बहुत सारी स्कीम चलाने का काम होता है। मैं इनको के हमारे अधिकारी बैठे, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के विजन को इन्होंने साकार करने का काम किया है, और अब तक 31 लाख दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए एक एनएफओ के द्वारा उनके लिए सहायक उपकरण देकर के उनके जीवन को सहज बनाने का काम किया है, उनके जीवन को सरल बनाने का काम किया है। आज भी वो अपने को एक तरह से सशक्त करने के साथ अपने के लिए दिनचर्या में एक अच्छा अनुभव और अच्छा महसूस करते हैं। सम्मानित बहनों भाइयों, जैसा मैंने कहा कि 70 अब तक ये दिव्यांशा केंद्र खुले हैं, इसमें 71वां ये है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी केवल यहीं पर रुकने वाले नहीं, उन्होंने कहा है इसी कार्यकाल में ये 70-71 से बढ़ाकर के पूरे देश भर में हम 300 से भी अधिक दिव्यांशा केंद्र खोलने का काम करेंगे। इन दिव्यांशा केंद्र खुलने से आज इस पोर्ट ब्लेयर यानी विजयपुर द्वीप पर रहने वाले हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए किसी कैंप का इंतजार नहीं करना पड़े। मैंने सांसद जी कह रहे थे, एक दिव्यांगजन के लिए एक सहायक लेने के लिए बड़ी दिक्कत परेशानी होती थी। मुझे लगता है और उस परेशानी का खत्म होने का समय आ गया है। अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके लिए यूडीआईडी आपके लिए मिलता है, आप यूडीआईडी लेकर आएंगे, आपका वही परीक्षण होगा, वही रजिस्ट्रेशन होगा, किस चीज की आवश्यकता है वहीं पर आपको सहायता देने का काम भी होगा। इतना ही नहीं, हमारे वृद्ध जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उम्र के साथ साथ उनके लिए भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक 5 लाख रुपए तक का बीमा आयुष्मान कार्ड के द्वारा किया था, लेकिन इस कार्यकाल में हमारे जो 70 साल से उम्र से ज्यादा ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है इलाज के लिए, तो उनके लिए अलग से आयुष्मान कार्ड देने का काम करते हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी हम अलग से आयुष्मान कार्ड देने का काम करते हैं। तब मैं कह सकता हूँ दिव्यांगजनों के साथ साथ हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी, उनके लिए हो सकता है कान में सुनने के लिए दिक्कत होती हो, कान की बहुत अच्छी मशीन की आवश्यकता हो, हमारा हेल्थ को उसको भी देने का काम करता है। इसी तरह से उनके दांत से लेकर घुटनों की समस्याएं, कोई और कोई समस्याएं, आंखों की समस्याएं, आंखों के चश्मे की समस्याएं किसी प्रकार की होगी तो हम वायुश्री योजना के माध्यम से उनको भी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ये हेल्थ को इन दिव्यांगता केंद्र के माध्यम से उनके लिए देने का काम करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने लगातार जो काम किया है, तो हम कह सकते हैं आज ये जो 70 प्रधानमंत्री दिव्यांगता केंद्र है, अब तक एडिट योजना जो हमारी हेल्थ की चलती है दिव्यांगजनों के लिए, वायुश्री योजना के अंतर्गत अब तक 1,62,00,000 रुपए से भी ज्यादा हमने इनको 162 करोड़ से भी ज्यादा जो है खर्च करने का काम किया है, जिसमें 1,12,000 लोगों के लिए हमने साइकिल देने का काम किया है। सम्मानित बहनों भाइयों, आज हम देखते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई बहन जब अपने को सशक्त मानते हैं, तो जो चलते फिर नहीं सकते, जिनके लिए तरह तरह की समस्याएं होती है, अभी आपने देखा कि हमारे ऐसे दिव्यांगजन बच्चे जो आपके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, हम इतना ही नहीं, उनके लिए जो सुविधाएं होती है, सुविधाएं देने से लेकर के, साइकिल देने से लेकर के आज खेलों के लिए भी प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले जब ओलंपिक गेम होते हैं, ओलंपिक गेम के अंदर अब तक हमारे देश के खिलाड़ी जाते हैं, हमारे देश का गौरव सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं और सबसे ज्यादा हाईएस्ट अब तक के मेडल लेने का काम करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के दिव्यांग भाई बहनों के लिए, जब पैरा ओलंपिक गेम होते हैं तो हमारे ओलंपिक गेम के जो खिलाड़ी मेडल लाते हैं उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम करते हैं, उससे भी ज्यादा मेडल लाने का काम करते हैं। तो आज दिव्यांग भाई किसी से कम नहीं है भाई बहन। तब मैं कहूँगा कि आप लगातार जब देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार इसी प्रकार से हम काम कर रहे हैं। सम्मानित बहनों भाइयों, आज जिस तरह से आपके स्पोर्ट प्लेयर इसे जैसे हम विजयपुरम कहते हैं, इसमें हम जितने भी दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण देते हैं, मैं कहूँगा ये निःशुल्क देते हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता और साथ ही सहायक उपकरण जो मिलते हैं वो उच्च कोटि के मिलते हैं, अच्छी गुणवत्ता के मिलते हैं, इस पर किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट भी नहीं होती। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी मोटराइज ट्राइसाइकिल जो मोटर से चलने वाली, उनके लिए 9th क्लास से लेकर इंटर तक उनकी एक आयु सीमा के साथ हमने देने का काम किया है। वो भी अपनी पढ़ाई करने के लिए उस मोटराइज साइकिल का बटन दबाएंगे, अपने स्कूल को जाने का काम करेंगे। अभी मेरे पास विषय आया था जिसमें मोटराइज साइकिल नहीं, एक मोटराइज साइकिल के लिए 80% से ज्यादा दिव्यांगता की आवश्यकता होती है। अगर 80% से ज्यादा दिव्यांग होते हैं, हमारे सांसद जी से भी मैंने कहा है और आप सबसे भी मैं कहता हूँ, आप इस दिव्यांगता केंद्र में लेकर आएंगे, उनके लिए मोटराइज साइकिल भी देने का काम ये दिव्यांगता केंद्र करेगा। अब इसके लिए बहुत लंबा समय आपके लिए किसी प्रकार का इंतजार का नहीं रहेगा, जब आवश्यकता है तब हम इसको ले सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए केंद्र न केवल सहायक तकनीक, पुनर्वास और पुनर्स्थापन सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें स्वावलंबी, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। हमारे साथ बहनों भाइयों, ये केंद्र की स्थापना से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों का वास्तव में समय समय पर सहायक उनको उपलब्ध कराने के साथ साथ उनको स्वावलंबी और सशक्त बनाने का जो उद्देश्य है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, केवल ये मंत्र यही नहीं है,
इसको चट्टान करने का काम किया है। और हम कह सकते हैं उसका एक ठोस रूप आज प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र के माध्यम से हम इसको देख रहे हैं। लेकिन आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, हमारे मीडिया के साथी भी हैं, कहीं भी कोई भी दिव्यांगजन जिसके लिए किसी सहायक उपकरण की आवश्यकता है, कोई हमारे वरिष्ठ नागरिकगण उनको उनके सहायक उपकरण की आवश्यकता है, आप उनको भेजिए। ये दिव्यांग केंद्र उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और हमारा मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन सामाजिक न्याय मंत्रालय जो हमारा है, उसी में हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इस काम को पूरा करता है। आपको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हुआ आज के समय की, और साथ में अपने अधिकारी बैठे हैं, लगातार आपने यहाँ पर काम किया है। और अभी मैं अधिकारियों से बात कर रहा था, इसके लिए नया स्थान को चिन्हित करने का काम किया है। नए स्थान पर जब ये हमारा प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जाएगा, मुझे लगता है कि और सशक्त और समृद्ध होगा। और मैं आप सबको एक बार फिर शुभकामना देता हुआ, और आप चिंता मत करिए, लगता है कि दिल्ली कोर्ट मिलर से दूर है, लेकिन दिल्ली दूर इसलिए नहीं है, दिलों की दूरी हमारी पास की है। दिल्ली कहीं दूर नहीं, दिल्ली पास है। हमारे सांसद जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे सांसद जी, मैं भारत सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। जिस तरह से आपकी लोकप्रियता है, लगातार 4 बार जब मैंने पूछा कि आपके वोटर कहाँ कितने रहते हैं, 28 दिन में जाकर आप वोटर से कैसे संपर्क करते होंगे, कैसे आप चुनाव जीत कर आते होंगे, तो वास्तव में आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बधाई के पात्र है। और आने वाले समय में मिलकर के काम करेंगे और इसका विकास और कैसे हो, इसकी समस्याएं हैं, इस विजयपुर की और उनको कैसे समाधान करें, इसकी चिंता मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब समय है उपकरण वितरण का। आज के उद्घाटन समारोह में ADIP योजना के तहत 49 यानी 49 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। S money for hearing aid. मशीन लगी ना आपकी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थैंक यू। Honor for क्या नाम है? मणि। मशीन लगी आप कान में ना? कान में मशीन लगी आप आगे जा रही ठीक चला है? हाँ, ठीक सुनाई दे रहा है? हाँ। आनंद वोरा। क्या नाम है? आनंद राव। ये आपके लिए स्मार्टफोन दिया है, ठीक है? अच्छा लगेगा? थैंक यू सर। पढ़ाई करने के लिए दिया है, पढ़ोगे? रीडिंग? यस, पढ़ूंगा सर। थैंक यू। मनोज कुमार विजुअली। ये एथिक भी नहीं जा रही है, ठीक है? इस गणित के साथ चलोगे। थैंक यू। कैसे हैं? अच्छा है। मनोज कुमार विजुअली इम्पैक्ट किड। आइए, ये स्मार्टफोन आपको दिया जा रहा है रीडिंग को, पढ़ने को। क्या नाम है? मनोज कुमार। पढ़ोगे ना इसे? ठीक है, ऑनलाइन क्लास में आपको इसमें सारा मिलेगा ना? जी। ओके, पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जॉन केटन पूरा केटन। इथिक भी दो। जॉन वॉकिंग स्टिक। कंटमन वॉकिंग स्टिक। ये आपके लिए छड़ी दी जा रही है, स्टिक। इसको आपको आसानी होगी। कंटमन वॉकिंग स्टिक। माता जी, आपको ये स्टिक दी जा रही है, छड़ी। अच्छा। इससे सारा मिलेगा ना? आपको पहले मिल गई है ना? ठीक है। इससे सारा होता है ना? ओके ओके। इससे अच्छा मिलता है ना? आज नया मिला है आपको।
ठीक, नया मिल जाएगा आपके लिए। ओके ठीक। मोहम्मद फरीदा लकड़ा स्मार्किन। फरीदा लकड़ा। ये बड़ा सेंसर वाला छड़ी है, सेंसर वाली छड़ी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कुछ होता है तो आराम से आप जा सकते हो, अकेले भी जा सकते हो। ठीक है, ये सेंसर चलाना, ये बटन दबेगा चालू होगा, कहीं कुछ भी होगा तो पता चलेगा। थोड़ा सा साइड हो गया सर, थोड़ा सा। I request all the participants जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।